thermal properties of matter. So in this we are going to define the temperature and temperature scales and expansion and heat and transfer of heat. Heat temperature we are measuring, our body temperature we are measuring with the thermometers है ना. Thermometers में जो normal घर में use करते thermometers, it is in the Fahrenheit scale. And measuring property कैसे रहती है, उसमें mercury का expansion होता है. तो that expand when it receives the heat है ना, ये वाला देखो. और other thermometers can be like this. It is a container containing the gas in constant volume. When you heat it, pressure will increase. यहाँ पे अगर heat देंगे तो ये it will be indicated अंदर जो है bimetallic strip होगी, वो wind होगी, तो temperature दिखाएगा. तो some property is used. यहाँ पे mercury का expansion use किया, यहाँ पर अपना गैस का expansion, गैस का जो है pressure use करेंगे यहाँ पे, volume remains constant. तो thermometers are not in our course, but temperature is temperature किस में measure करते हैं, degree Celsius or Kelvin or Fahrenheit. 3 temperature scales are there, they are used, है ना. जैसे system of units में different system of units, similarly here also we use the 3 systems. All right, but how do we define the temperature? Temperature कैसे define करते हैं? It is a degree of hotness or coldness, है ना. कितना hot है या कितना cold है, degree of hotness or coldness. There is lower limit of temperature. Lower limit कितना होता है? 0 Kelvin, है ना. तो 0 Kelvin is the lower limit, which is equal to -273 degrees Celsius. Quite a low temperature, but there is no upper limit of temperature, है ना. Big Bang के time में बहुत high temperature था. Now, at this moment, average temperature of universe is about 2 Kelvin. It is very cold and -271 degrees Celsius. Average temperature of universe. But we are lucky, Earth is near to the sun and average temperature is quite high and there is a life and we are discussing this temperature. Otherwise, nobody would have been on the Earth if average temperature was in the range of this. Universe की range का temperature होता है, तो life was not possible at such a low temperature, है ना. But we don't know whether possible or not. We cannot rule out, but it looks like that, है ना. At this much low temperature, life may not be possible, but we cannot rule out. All right. So we are lucky we are near to the sun and average temperature is much greater and we are discussing all this. Now, various temperature scales. We are using 3 temperature scales. Kelvin, which is also called absolute scale. इसमें क्या होता है? Ice point, can you see this? यहाँ पर ice point लिखा है. Ice point is at 273.15 Kelvin and steam point is this 373. So ice point 273.15, steam point is 373.15. और बीच का जो gap है, that is divided into 100 equal parts. 100 divisions are there. Each division will represent 1 Kelvin. तो इसमें 100 divisions होते हैं. दूसरा डिग्री सेल्सियस, ये ऐसा यूनिट होता है, ये सीजीएस यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, है ना. इसमें जो है आइस पॉइंट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. ये सब 1 एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, एसटीपी पे बात चल रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर. तो 1 एटमॉस्फेयर पे 0 degree Celsius per ice will be formed and boiling will take place at 100 degrees Celsius. Steam will be formed at 100 degrees Celsius. Again, gap is divided into 100 equal parts, 100 divisions. And third one is degree Fahrenheit scale. उसमें ice point is 32 plus 32. Steam point is 212 degrees Fahrenheit. और बीच का जो गैप है वो 180 डिविजन्स में डिवाइड है. इसके जो इंटरवल्स होंगे
छोटे होंगे, डिवीजन छोटे होंगे इससे एज कम्पेयर टू, इसके बड़े होंगे, इसके छोटे होंगे, है ना। ऑलमोस्ट डबल ही होगा इसके, 200 होते तो डबल हो जाते, आधा आधे साइज का, ठीक है। इसमें डिग्री केल्विन नहीं लिखते हम, ऐसा नहीं लिखते, दिस द कन्वेंशन वे ऑफ राइटिंग। केल्विन में डिग्री नहीं लिखी जाती है, सेल्सियस में एंड फ़ारेनहाइट स्केल में डिग्री लिखा जाता है ना, तो दैट कन्वेंशन यू हैव टू फॉलो, ठीक है। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर, यू कितना होता है बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का? 98 नॉर्मल, नॉर्मल उसमें 30 to if you don't 40 have the, degree Celsius. no, it is 37 degrees Celsius, close to 37, 36.9, we can take it 37 डिग्री सेल्सियस में, बट थर्मामीटर्स एफ स्केल में होते हैं विच इज 98.6। तो हाउ टू कन्वर्ट, ये 36.9 है, both are equal, what there should be one relation between them to convert from one to other। तो जनरल रिलेशन ये होता है, देखो जनरल रिलेशन इज, ये स्लोप से निकालते हैं, स्लोप ग्राफ बना के स्लोप बनाते हैं उससे निकालते हैं, तो वी आर नॉट डूइंग दैट। जनरल रिलेशन ऐसे आता है, x माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। ये रूल है, सभी स्केल के साथ रिलेट कर सकते हैं। सपोज हमने कोई न्यू स्केल ले रहे हैं या फिर फॉल्टी स्केल, तो वहां पे ये यूज करेंगे, एंड x अगर नाउ डिग्री सेल्सियस में x की जगह c आ जाएगा, आइस पॉइंट कितना है 0 है, और नीचे 100 माइनस 0 तो 100 हो गया। फ़ारेनहाइट में x की जगह f आ जाएगा, आइस पॉइंट उसका 32 है, नीचे दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। केल्विन में x की जगह k आ जाएगा, उसका आइस पॉइंट 273 है, नीचे दोनों का डिफरेंस 100 आ जाएगा। तो ये रिलेशन से हम, अगर हमें डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में रिलेट करना है तो ये ले लेंगे, सेल्सियस केल्विन में रिलेट करना है तो ये इक्वेट कर लेंगे, एफ एंड के में तो ये ले लेंगे। तो सबसे पहले सी एंड एफ लेते हैं, उसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी यू कैन डू इट, ठीक है। अगर कोई नया स्केल है तो उसमें बोल देंगे आइस पॉइंट इतना लेना है, स्टीम पॉइंट इतना लेना है। कोई फॉल्टी थर्मामीटर है, उसका आइस पॉइंट, सपोज आइस पॉइंट कुछ चेंज हो गया, 10 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। स्टीम पॉइंट सेम रहा तो 100 माइनस 10, इसको किसके साथ निकालना है? अगर बोला जाए उसका ओरिजिनल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में इतना है, तो वो थर्मामीटर कितना रीड करेगा, तो एक्स निकाल लेंगे। ओरिजिनल सपोज 50 है, 50 पुट कर देंगे, इसके साथ रिलेट कर देंगे। जो नया आइस पॉइंट है वो यहाँ पुट कर देंगे, या नया स्टीम पॉइंट है यहाँ पुट कर देंगे, और जिस स्केल में टेम्परेचर दिया है उसके साथ इक्वेट कर देंगे उसको। तो हमारा फॉल्टी थर्मामीटर में या न्यू थर्मामीटर में एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। तो पहले हम सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल को इक्वेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो ये बन गया। तो अभी मैं पूछूं, अगर बॉडी टेम्परेचर 37 है, फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, यहाँ पे 37 पुट कर दो, एफ के लिए सॉल्व कर दो, तो ये आएगा कितना बताया मैंने, 98.6 एफ डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस में है ये, ठीक है। So this can be done easily if you remember this. ग्राफ ड्रॉ करना है अभी। If I tell you draw the graph between C and F, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो C को हमें कहाँ पे लेना, अच्छा चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर है, सपोज ये क्वेश्चन में मैं पूछूं अगर 10 डिग्री चेंज हो रहा है सेल्सियस में, तो एफ स्केल में कितना चेंज होगा। तो यहाँ पर ये रिलेशन को देखो, हाउ टू डू दिस। यहाँ पर देखो ये रिलेशन लिख लेंगे पहले, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख दो, f/9 माइनस 32/9, अगर नीचे क्या था 5 था यहाँ पर, तो चेंज इन c अपॉन 5 विल बी चेंज इन f अपॉन 9, और ये तो कांस्टेंट है, नो चेंज। अगर हम डिफरेंशिएट करें या इसको चेंज का फार्मूला लगाएं तो ये ऐसा हो जाएगा, सिंपल, नो चेंज। कांस्टेंट में कोई, ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, तो अगर हमने एफ में कुछ चेंज हुआ तो सी में चेंज रिफ्लेक्ट करेगा, सी में कुछ, तो यहाँ से रिलेशन आ गया अभी। तो कितना चेंज हो रहा है सी में, तो 10,
10/5 डेल्टा एफ बाई 9, तो कितना आ रहा है देखो, डेल्टा एफ इज 18 डिग्री। 18 18 चेंज हो रहा है, उसको छोड़ दो, एफ छोड़ दो, ठीक है। अदरवाइज तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, पहले तुम्हें सपोज इनिशियल टेम्परेचर इज एक्स, तो एक्स प्लस 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। दिस इज द इजी मेथड, शॉर्टकट फार्मूला बना लिया हमने चेंज के लिए। नाउ ग्राफ के लिए देखो, यहाँ पे देखो ग्राफ सी एंड एफ के बीच में, तो अपना जो रिलेशन था सी, यहाँ पे 9 को सी के नीचे 5 था, इधर भेज दो, 5/9 एफ हो जाएगा, और यहाँ पर 32 था ना, 32 32/9 भी है, 32 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 160/9 बचेगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन अब स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, हाँ सर। तो ये उसका स्लोप हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया, तो ग्राफ विल कम लाइक दिस, विल बी कमिंग लाइक दिस, ऐसा। तो एससीवी में उन्होंने, एससी वर्मा में 4 स्लोप दिखाया ऐसे, एक ऐसे लाइन दिखाई है, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये वाली लाइन सही होगी अपनी। अगर हमने ये इंटरचेंज कर दिया तो एफ को इधर ले आए और सी को इधर, तो ये इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो ऐसे हो जाएगा, लाइन ऊपर से आएगी, स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा दोनों में, ये 9/5 हो जाएगा, और ये प्लस 160/9, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या दिखाता है, वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, इसमें माइनस में कट कर रहा है, देखो नीचे कट कर रहा है इतना, माइनस में। अगर सी एंड एफ को इंटरचेंज कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा। इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन से किया था हम लोगों ने, देखो ऐसा है, y is equal to mx minus c, ठीक है। समटाइम्स इट इज आस्क्ड, समटाइम्स नहीं पूछते, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, टेम्परेचर स्केल्स आर इन आवर कोर्स, वी शुड हैव सम नोमेनक्लेचर। तो जैसे ये भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है, एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल विल कोइंसाइड, विल बी इक्वल। देखो यहाँ पर एक पॉइंट और मैं अच्छा बताऊं तुम्हें, देखो यहाँ तक ठीक सार ओके, ये समझ में आ गया ग्राफ, लास्ट क्वेश्चन हाँ सर। करके फिर थोड़ा हम हीट का एक 5 मिनट और करेंगे, अभी कोर्स अपना थोड़ा पीछे है ना, फास्ट उसको थोड़ा सा करा देते थे, जहाँ पे डिफिकल्टी लगे तो पूछ लेना। देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ 32, अगर फ़ारेनहाइट किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 32 है, तो उसका केल्विन में कितना होगा या डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो सामने इसके दिख रहा है, आइस पॉइंट है ये, डिग्री सेल्सियस में 0 होगा और केल्विन में 273 होगा, है ना, होगा कि नहीं हाँ है? सर। हाँ हाँ। अगर मैं बोलूं फ़ारेनहाइट 212 को कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस में, तो बिना 100 फार्मूला लिखे आएगा। कर सकते हैं, 100 आएगा, क्योंकि वो स्टीम पॉइंट है, इसका 373 आएगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा टेम्परेचर एक्स, मतलब कौन सा टेम्परेचर इक्वल होता है डिग्री सेल्सियस का एफ के इक्वल होता है, तो हम ले लेंगे एक्स, दोनों में एक्स ले लेंगे, तो सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर भी एक्स लिया हमने, कहाँ गया ये, यहाँ पर भी एक्स लिया, यहाँ भी एक्स लिया, जब हम सॉल्व करते तो -40 आता है, मतलब यहाँ कहीं पे -40 होगा, इसका -40 इसके सामने होगा, -40 के, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस, है ना। ऐसे इसका और इसका भी आता है, बट इसका कभी नहीं आएगा, इन दोनों का हमेशा 100 का डिफरेंस चलता है। अगर हम इसको इक्वेट करें, देखो अभी हम जैसे कभी कभी हम ऐड कर देते डायरेक्ट, तो देखो यहाँ पर इक्वेट करो, ये 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, c इज इक्वल टू के -273, तो k इज इक्वल टू c प्लस 273, डिग्री सेल्सियस में होता है तो हमेशा 273 ऐड कर देते हैं, तो इनका डिफरेंस जो है 273 का ही चलता रहेगा हमेशा, कभी कोई ऐसा टेम्परेचर जो है कोइंसाइड नहीं करेगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, फिर सॉल्व कर लो, x/5 x माइनस 32/9, सॉल्व करके देखते हैं, 9x 5x माइनस 160 है ना, 160।
तो ये कितना आएगा 160 इज minus इक्वल टू 40 हाँ 4x -4x minus तो x 4x इज इक्वल टू -40 डिग्री। अगर अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो फॉरेनहाइट स्केल में भी उतनी आएगा माइनस उसको मतलब -40 डिग्री फॉरेनहाइट। तो ये इस टेम्परेचर पे कोइंसाइड करते हैं दोनों स्केल, अदरवाइज डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस जनरली आस्क अदरवाइज समटाइम नॉट आस्क। नीट वीट के पेपर में पूछे जाते, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में पूछे जाते, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। बट हमें वो केल्विन वाला आना चाहिए ना, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन का है ना, ये वाला, ये वाला, सॉरी ये हो गया, यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, या नीचे लिख दूं फॉर्मली, चलो नीचे लिख देते हैं। रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या था अपना रिलेशन पहला वाला, C/100 था, और ये कितना था, केल्विन a -273। minus 273 upon 100 तो C इज इक्वल टू K -273 और K इज इक्वल टू c plus C प्लस 273 273। फॉर एग्जाम्पल C इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, तो केल्विन कितना आएगा 27 प्लस 273 300 300 केल्विन। जनरली हम क्वेश्चन करते हैं, अपने केमिस्ट्री में भी किए होंगे। ऑलराइट, यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले, थर्मल एक्सपेंशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं। थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ये रेलवे लाइन होती है, रेल की पटरी है, तो बीच में गैप रहता है। देखो क्या होता है, समर में एक्सपेंड होती, नीचे जो नेट बोल्ट होते हैं ना ये वाले, वो भी थोड़े से इनके जो होल होते हैं इलांगेटेड होते हैं, कि भाई एक्सपेंशन हुआ तो वो थोड़ा इलांगेट हो सके, नहीं तो वो बेंड हो जाएंगे यहाँ पर। तो एक्सपेंशन होने में ये गैप जो है इज टेकन ओवर, गैप छोड़ना पड़ता है। अगर गैप नहीं छोड़ा तो बेंड हो जाती है। इनिशियली जब रेलवे लाइन बनी थी तो बहुत सारी ये रेल्स बेंड हो गई थी, उन्होंने विंटर में बनाई और समर में वो एक्सपेंड हो, तो नाउ दे टेक केयर ऑफ दैट, यहाँ पर गैप छोड़ते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन है। और एग्जांपल क्या थर्मल एक्सपेंशन के, इलेक्ट्रिक आयरन में वो जो थर्मोस्टेट स्विच होता है वो यूज करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन से बेंड हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाती है सप्लाई, फिर वो कूल हो जाती है, फिर से डिस्कनेक्ट हो जाती है। फ्रिज में है ना, अपने आप वो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है बीच बीच में, तुमने ध्यान दिया है, तो थर्मोस्टेट रहता है उसमें, हाँ वो सर थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, टुमारो विल सी। तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है सप्लाई, जब टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुंच जाता है फ्रिज के अंदर, कूलिंग हो जाती है तो बंद हो जाता है, फिर अपने आप चालू हो जाता है ना। तो विल सी टुमारो एक्सपेंशन एंड हीट के बारे में। चल आई स्टॉप इट नाउ, ओके चलो, yes sir थैंक यू। thank you sir